بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان جیسا مبارک، عظیم، برکت والا، مقدس، محترم مہینہ عطا کیا اور اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں کئی بڑے بڑے کام رکھے ہیں۔ ان میں سے آخر میں جب رمضان کا روزہ آخر پڑاؤ میں آ جاتا ہے، آخر وقت میں آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کتنا بڑا کرم والا ہے، کتنا بڑا رحم والا ہے، بندوں پر کتنا رحم اور کرم کرنے والا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا، مہینہ بھر روزہ رکھا، اب روزوں کے اندر کوئی بد زبانی ہو گئی، کوئی لغو بات زبان سے نکل گئی، کوئی بیہودہ بات زبان سے نکل گئی، روزہ تو پورا کیا، اب اس بیہودہ بات کی وجہ سے، لغو بات کی وجہ سے روزے کے اندر کمی آ گئی، تو اللہ تعالی نے اس کمی اور خامی کو دور کرنے کے لیے کہ تیرا روزہ بالکل پاک اور صاف رہے، تیرے روزے کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ الفطر کو مقرر کیا۔ زکوٰۃ الفطر کو مقرر کیا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد جب تم عید کی نماز پڑھو گے تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے تم صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر ادا کر دو، زکوٰۃ الفطر ادا کر دو۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے 1 یا 2 دن پہلے نکالا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ پورے رمضان میں نکالتے ہیں، کوئی کبھی نکالتے ہیں، لیکن ان کا دن مقرر ہے، پہلا کہ 1 یا 2 دن پہلے اور آخر نماز میں جانے سے پہلے۔ نماز کے بعد اگر کوئی نکالتا ہے صدقۃ الفطر تو وہ زکوٰۃ الفطر نہیں، وہ عام صدقات ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا، اب اگر کوئی خامی ہے، کمی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر متعین کیا ہے۔ حدیث سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو مقرر کیا۔ کیوں؟ زکوٰۃ الفطر 2 فائدہ، ایک تو روزہ دار کی صفائی کے لیے، روزہ کی حالت میں لغو اور رفث بیہودہ کام، بدگوئی، بد زبانی یا میاں بیوی سے متعلق کوئی جنسی بات ہو گئی جس کو رفث کہتے ہیں، یا اس طرح سے کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی تو روزے کے اندر خامی ہو گیا، تو اس کی بھرپائی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقۃ الفطر تم نکالو تو تیرا روزہ پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کیا؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانے کے لیے، مساکین کو کھانے کے لیے کہ صدقۃ الفطر نکالو گے تو اس سے مساکین کھائیں گے اور اس دن بھوکا ان کو نہ رہنا پڑے، اس لیے یہ صدقۃ الفطر مقرر کیا۔ اب کتنا دیا جائے گا؟ حدیث سنیے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من صعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
बुखारी हदीस नंबर 1503, मुस्लिम हदीस नंबर 984। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, वह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया एक सा खजूर में से या एक सा जौ में से। ये किनको लगेगा? गुलाम को भी लगेगा, आज़ाद को भी लगेगा, और मर्द को भी, औरतों को भी, और छोटे छोटे बच्चों को भी, और बड़े लोगों को भी, बूढ़ों को भी जो मुसलमान हैं। इन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र मुकर्रर किया, ज़कातुल फ़ित्र मुकर्रर किया एक सा जौ में से या एक सा खजूर में से, और हुक्म दिया कि ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले पहले तुम इसको अदा कर दो। दूसरी रवायत सुनिए, अनबी सईदिन खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुन्ना नखरुज ज़कातल फ़ित्र साअम मिन तआमिन औ साअम मिन सईरिन औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन अक़तिन औ साअम मिन ज़बीबिन। बुखारी हदीस नंबर 1506, मुस्लिम हदीस नंबर 985। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, वो बयान फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सदक़तुल फ़ित्र ज़कातुल फ़ित्र निकाला करते थे। मिन तामिन, तामन होता है खाना, तो चूँकि आम खाना मक्का में गेहूँ था तो गेहूँ को वो लोग ताम कहते थे, तो ताम कहने से गेहूँ मुराद लिया जाता था। तो यहाँ ताम का लफ्ज़ है, ताम से मुराद गेहूँ है। गेहूँ से एक सा या जौ से एक सा या खजूर से एक सा या पनीर से एक सा या किशमिश से एक सा, ये 5 किस्म के अजनास हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इन्हीं 5 किस्मों में से किसी एक किस्म के जरिया हम सदक़तुल फ़ित्र एक सा निकाल दिया करते थे। मालूम ये हुआ हदीस में कि एक सा निकाला जाएगा, खा ये जौ हो या खजूर हो या गेहूँ हो या पनीर हो या मुनक्का हो, एक सा निकाला जाएगा। यह हदीस में वाज़ेह अल्फाज हैं। यह हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, और हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वह हदीस जिनमें खजूर और जौ का जिक्र है, सब की जानिब से निकाला जाएगा। साहिब निसाब हो तो उसको देना पड़ेगा, साहिब निसाब नहीं हो तो उसको देना पड़ेगा एक सा। हनफिया ये कहते हैं जो साहिब निसाब हैं उनको सदक़तुल फ़ित्र उनको लगेगा और वो सदक़तुल फ़ित्र अदा करेंगे। लेकिन यहाँ ये साहिब निसाब होने की कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया छोटे को भी, बड़े को भी, मुअन्नस को भी, मुज़क्कर को भी, गुलाम को भी, आज़ाद को भी, सबको यह सदक़तुल फ़ित्र निकालना पड़ेगा, यह ज़कातुल फ़ित्र निकालना पड़ेगा। और कितना निकालना पड़ेगा? एक सा निकालना पड़ेगा, पूरा एक सा पूरा एक सा। तो ये कब निकालेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि ईद की नमाज में जाने से एक दिन या 2 दिन पहले, और ईद की नमाज में जाने तक, ईद की नमाज के लिए निकलने तक ये वक्त है मुकर्रर सदक़तुल फ़ित्र निकालने का। और एक रवायत में आती है, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि उन्होंने कहा मन अद्दाह क़ब्ल अल-फ़ित्र फ़हिय ज़कातुम मक़बूला व मन अद्दाह बाद सलात फ़हिय सदक़तुम मिन सदक़ात। कहा कि नमाज में जाने से पहले अगर ये निकाल देता है तो ये सदक़तुल फ़ित्र, ये ज़कातुल फ़ित्र है, और अगर नमाज के बाद निकालता है तो ये आम सदक़ात है, आम सदक़ात है, और ये ज़कातुल फ़ित्र उसकी जानिब से अदा नहीं हुआ। तो इससे ये मालूम हुआ कि इसका वक्त भी मुकर्रर है, और इसका वक्त ये 2 दिन या 1 दिन पहले और आखिरी वक्त नमाज में जाने से पहले पहले तक ये वक्त मुकर्रर किया गया। ये अब मसला ये है, सवाल ये है कि नकदी भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अभी ये मसला बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है कि सिर्फ गल्ला ही निकाला जाएगा, नकदी नहीं दे सकते, रुपए नहीं दे सकते, उसके बदले में रुपए नहीं दे सकते, ये रुपए देना नाजायज़ है, हराम है। तो ये एक किस्म का इफ़रात व तफरीत है, गुलू है।
बहुत से मुहक्किकीन उलमाए किराम ये कहते हैं कि सदक़तुल फ़ित्र में, ज़कातुल फ़ित्र में ये गल्ला भी दे सकते हैं। ज़कातुल फ़ित्र में गल्ला देना बेहतर है, और रुपए भी दे सकते हैं, उसके बदले में रुपए भी दे सकते हैं, उस नकदी भी दे सकते हैं। और उन्हीं में से एक बड़े बहुत बड़े मुहक्किक अल्लामा शौकानी भी हैं, वो ये कहते हैं कि उसके बदले में सदक़तुल फ़ित्र के बदले में, ज़कातुल फ़ित्र के बदले में गल्ला देने के बजाय अगर कोई रुपए देगा तो उम्मीद है कि वो अदा हो जाएगा, सदक़तुल फ़ित्र, ज़कातुल फ़ित्र उनकी जानिब से अदा हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे बड़े बड़े उलमा हैं, उनका भी ये इस्तिदलाल है कि ज़कातुल फ़ित्र में रुपए देने से भी ज़कातुल फ़ित्र अदा हो जाएगा। और एक लफ्ज़ इसमें हदीस में जिसमें यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को क्यों मुकर्रर किया, तोहरतल लिस्साइम मिनल लग़्व व रफ़स एक फ़ायदा, और दूसरा फ़ायदा वहाँ ये बयान किया गया है तौमतल लिल मसाकीन। तौमतल लिल मसाकीन ये महल गौर है, इसमें गौर कीजिए कि मसाकीन को खाना देने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, तो कोई आदमी अगर रुपए दे दे गल्ला के बदले में, गेहूं के बदले में, जौ के बदले में, खजूर के बदले में, पनीर के बदले में, किशमिश के बदले में, तो रुपए दे दे, तो उससे भी फ़कीरों के खाने का इंतज़ाम हो सकता है। उस रुपए से वो अपनी पसंद की चीज़ खरीद लेंगे, गेहूं खरीदेंगे, जौ खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, लच्छा खरीदेंगे और सेवई खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, खीरा ककड़ी खरीदेंगे, खाने की चीज़ वो खरीद लेंगे उस रुपए से। तो इससे मालूम ये होता है कि सदक़तुल फ़ित्र में रुपए भी दे सकते हैं। और अगर कोई उज्र है, कोई परेशानी है तो, और उज्र और परेशानी ये है कि सदक़तुल फ़ित्र में मान लीजिए एक गरीब हकदार औरत है, अगर उसको सदक़तुल फ़ित्र में 20 किलो गेहूँ मिल रहा है, अब वो औरत आसानी के साथ चल नहीं सकती, तो 20 किलो लेकर के कैसे जाएगी, उठाकर कैसे जाएगी? यकीनन उसको कोई मजदूर करना पड़ेगा, उसको मजदूरी देनी पड़ेगी, तब उनके घर तक वो सामान पहुंचेगा। पहुंचा दिया, घर पहुंचा गया, गेहूं पहुंच गया। अब उसके घर में पीसने का कोई इंतजाम नहीं है, तो उसको आटा पिसवाने की ज़रूरत पड़ेगी, आटा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें पैसे की ज़रूरत होगी। तो जाहिर सी बात है कि नकदी के लिए फिर गेहूं को बेचना पड़ेगा, और फिर उसके बाद गेहूं पिसवा लिया, गेहूं को बेच करके, तो उसके बाद फिर घर में लकड़ी नहीं है, तो लकड़ी के लिए, उसको लकड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो वही गेहूं बेच करके पैसा करेगी। अब उसके बाद दाल खरीदने की ज़रूरत होगी, उसके घर में रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, तो तेल खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही पैसे की बात आ रही है। और उसको बेच करके सदक़तुल फ़ित्र में जो गेहूं मिला है, या उसको बेच करके ये सामान वो खरीदेगी, तब जा करके वो खा सकेगी, तब उनका पेट भरेगा। तो अगर ये समझा जा सकता है कि अगर उसको डायरेक्ट पैसा ही दे दिया जाए तो उनको ये परेशानी उठाने की नहीं पड़ेगी, ये उनके लिए एक उज्र है, और पैसा देना ही उनके लिए, उनके हक में, उस गरीब लोगों के हक में, मसाकीन के हक में ज़्यादा बेहतर है। उससे ज़्यादा वो खुश होते हैं कि पैसा हमको मिल गया, इससे हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ खरीदेंगे। वरना उसी सामान को अगर वो ले जाकर के दुकान में बेचते हैं, तो यहाँ अगर मान लीजिए किसी ने उसको 20 रुपए के हिसाब से दिया है, तो वहाँ दुकान में जब उसको बेचेंगे वो सामान, तो वहाँ 15 के रुपए से उसको बेचना पड़ेगा, तो वहाँ उनको घाटा हुआ, वहाँ उनको घाटा हो गया। तो ये सब बातें हैं कि उससे उनको फ़ायदा है कि उनको रुपए देने में उनको ज़्यादा राहत है। अद्दीन युस्रुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीन आसानी का नाम है, दीन सख्ती का नाम नहीं है। दीन में आसानी पैदा कीजिए, और किसी पर हराम का फतवा मत लगाइए कि अगर रुपए देने से हराम का काम कर रहा है और सदक़तुल फ़ित्र उनका नाजायज़ हो गया, हराम हो गया, हदीस के खिलाफ हो गया, गल्ला ही देना पड़ेगा। तो इस तरह की फतवाबाजी अच्छी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसको दिया किन को जाएगा? एक सवाल ये आता है कि ज़कातुल फ़ित्र के हकदार कौन लोग हैं? तो ये जो लोग ये कहते हैं कि ज़कातुल फ़ित्र के हकदार 8 किस्म के लोग जो ज़कात के हकदार हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। ये 8 किस्म के लोग हैं। तो कहते हैं कि ज़कातुल फ़ित्र
بھی انہی 8 قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ دلیل ان کی کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں زکوٰۃ الفطر کی بات کہی ہے حدیث میں، تو صدقۃ الفطر نہیں کہا کہ زکوٰۃ الفطر کا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا، زکوٰۃ الفطر نکالنا بھی فرض ہے، تو زکوٰۃ الفطر نکالنا فرض کیا، لفظ زکوٰۃ میں وہ فرض کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کا مصرف بھی جب یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے تو اس سے جو پیسے آئیں گے حاصل ہوں گے، اس سے جو غلہ حاصل ہوگا یا پیسہ حاصل ہوگا، اس کو بھی ان لوگوں کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ الفطر کے حقدار ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے۔ بعض دوسرے محققین علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ الفطر کا مصرف، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر کا مصرف اس حدیث میں بیان کر دیا ہے، طعمۃ للمساکین، مساکین کو کھلانے کے لیے۔ تو اس سے صاحب ظاہر کر دیا اللہ کے نبی نے، گرچہ وہ زکوٰۃ الفطر ہے لیکن وہ زکوٰۃ الفطر کن کے لیے ہے؟ مساکین کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، مساکین اور فقراء کو یہ دیا جائے گا، اور یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے محققین علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کا مصرف یہ طعمۃ للمساکین ہے، مصرف وہ 8 قسم کے لوگ نہیں ہیں، اسی میں علامہ البانی بھی ہیں اور بہت سے بڑے بڑے محققین علماء کرام ہیں۔ تو اس کو بکھڑا بھی نہیں بنانا چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر میں اگر کوئی روپے دے رہا ہے تو روپے دینا بھی جائز معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین حق کو سمجھنے اور حق پر چلنے کی تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔